حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں گشت کرتے ہیں، شہر میں چکر لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی غریب بھوکا تو نہیں پڑا ہوا ہے، کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں، کسی یتیم کے گھر میں کھانا پکا یا نہیں۔ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کہ دیکھیں راستے میں کوئی بھوکا تو نہیں پڑا ہوا ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے جن کی عیادت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے اس چیز کی تلاشی میں نکلتے ہیں۔ جب رات ہو چکی تھی، قریب تھا کہ صبح ہو جائے، ان سے پہلے امیر المؤمنین کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ محسوس ہوا، کسی گھر کی دیوار میں ٹیک لگا کر سہارا لگا کر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کون؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، جن کو اس دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، جن کو اس دنیا میں جنت جانے کی بشارت دی گئی، جس نے بیک وقت آدھی دنیا میں حکومت کی، جن کی سلطنت رہی، وہ امیر و سرکار رات کی تاریکی میں یتیم کی خبر لینے کے لیے نکل رہے ہیں، غریب کے گھر میں خبر لینے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اتنے میں ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملاؤ۔ اس بیٹی نے کہا ماں امیر المؤمنین نے ہمیں دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، ہم کیسے پانی ملائے جبکہ امیر المؤمنین نے ہمیں کہہ دیا کہ پانی ملانا حرام ہے، پانی ملانا غلط ہے، ہم کیسے پانی ملائے؟ ماں نے کہا بیٹی اس وقت تمہیں امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا ہے، حضرت عمر کی نگاہ سے تم اوجھل ہو، عمر اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، عمر تمہیں دیکھ نہیں رہے، تم پانی جلدی سے ملاؤ، تمہیں کوئی دیکھ نہیں پا رہا بیٹی۔ لیکن میری ماں و بہنوں، جلد سے سننے کے لیے آئی ہو یا میری آواز کانوں پر جا رہی ہو سوشل میڈیا کے ذریعے، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر بہت بڑا کانڈ ہوا ہے، میں نے سنا کہ یہاں میں بے حیائی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اس بیٹی نے جو جواب دیا تھا وہ تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ اس بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین کی نظروں سے ہم اوجھل ہیں، امیر المومنین ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، عمر فاروق ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایشور تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایشور تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کی نظروں سے بچ کر کیا ہوگا ماں؟ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو اللہ کے رسول نے حدیث کے جملوں میں یوں بیان کیا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے لوگوں جہاں کہیں بھی رہو، سمندر کی تہوں میں رہو، سمندر کی لہروں میں بہتے رہو، زمین کے پاتھروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں گھس جاؤ، جزیروں میں بند ہو جاؤ، قلعوں میں بند ہو جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، کسی گفا میں چھپ جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف پیدا کرتے رہنا۔ جہاں کہیں رہو، جب عبادت کرو تو ایسا سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو تو تصور کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا خیال رکھنا، تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی، تمہارا اعمال قبول ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو ہم دنیا میں جب تک ہمارے سامنے فوٹیج رہے، سی سی ٹی وی کیمرے رہے، ہم ان کیمرے کی نگرانی میں آنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہمارے داہنے کندھے پہ، بائیں کندھے پہ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ ہماری باتوں کو لکھتے رہتے ہیں، جن کو قرین کہا گیا ہے، اور قرین کا معنی ساتھی ہوتا ہے، یہ ہماری ہر باتیں لکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا خوف کر کے، لوگوں کے خوف کر کے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ؟ اس بیٹی نے جواب دیا کہ ماں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس بیٹی کا تقویٰ دیکھی کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ نے آیت کے آخر میں، روزے کی فرضیت والی آیت کے آخر میں تقویٰ کا لفظ استعمال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, तुम ही पर नहीं, तुमसे पहले भी लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह का खौफ पैदा करने लगो। इस आयत में अल्लाह ने तकवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसकी मैंने एक बारीक बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको तकवा का मतलब एक ये भी है, जैसे सहरी हम और आप खाते हैं ना, सहरी खाने के बाद हम और आप खाना पीना तर्क कर देते हैं, और जब इफ्तार करते हैं उसके बाद खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सबको समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि हम सहरी को थोड़ा जल्दी खा लेंगे और इफ्तार को थोड़ा ताखिर से करेंगे, यानी भूखा ज्यादा रहेंगे तो हमें सवाब ज्यादा मिलेगा। गौर से सुनिए, सहरी को हम जल्दी खा लेंगे, 12 बजे ही खा लेंगे, और इफ्तार रात के 8 बजे 9 बजे करेंगे तो हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह ने तकवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। देखिए, तसहरू फइन्ना फिस्सुहूरि बरकतन, ऐ लोगों तुम लोग सहरी खा लिया करो, इसलिए कि उसमें बरकत है। और इफ्तार के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पे रहेगी, लोग उस वक्त भलाई में रहेंगे, लोगों में खैर बाकी रहेगा, भलाई बाकी रहेगी, जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। यहाँ पे जल्दी करने का हुक्म दिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि थोड़े ताखिर से अगर इफ्तार कर लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, तकवा का मतलब यह है क्या है लोगों? अल्लाह कह रहा है, ऐ लोगों मैंने तुम्हें सहरी खाने का हुक्म दिया है, तुम ये ना सोचो कि हम सहरी नहीं खाएंगे, मज़ीद भूखा रहेंगे, और भूखा रह के ही हम रोज़ा रख लेंगे, और जब इफ्तार का वक्त आएगा तो हम ताखिर से इफ्तार करेंगे। लेकिन तकवा इसका मतलब ये नहीं। तकवा का मतलब तो है, अल्लाह कहता मेरे बंदो मैंने तुम्हें खाने के लिए हुक्म दिया, तुम खा लो, सहरी खा लो, और सहरी खाने के बाद मैंने तुम पर दिन में तमाम चीजें खाना हराम कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए खाना हराम कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए पीना हराम कर दिया, करार दिया है। तुम सहरी खा लो, सहरी खाने के बाद गुरूब आफताब से पहले, इफ्तार के वक्त से पहले कुछ नहीं खाओ, ये मेरा हुक्म है। मैंने तुम्हें कहा सहरी खाओ, तुमने सहरी खा लिया, फिर मैंने तुम्हें मना कर दिया कि अब तुम ना खाओ, फिर जब मेरा हुक्म होगा कि इफ्तार करो तो तुम इफ्तार कर लो। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज का नाम तो तकवा है कि अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है कि इफ्तार करो, अल्लाह कह रहा है कि खा लो। ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया था कि दिन में तुम खाना ना खाओ, दिन में तुम पानी ना पियो, मैंने तुम्हें कह दिया था, तुमने वो सुन लिया है। अब मैंने ये भी कह दिया कि तुम इफ्तार कर लो, तो इफ्तार सही टाइम पे कर लो। अगर उनके कहे हुए के मुताबिक हम सहरी खाते हैं, उसके बाद गुरूब आफताब तक खाना पीना बंद कर दे, तो ये उनका हुक्म ही ना हो। अब मजीद हम यूं क्यों दिमाग लगाएं कि हम ज्यादा भूखे रहेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। इत्तिबा तो इसी चीज का नाम है कि जब हमें चलने के लिए कहे तो हम चले, रुकने के लिए कहे तो हम रुक जाए। खाने के अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है कि सहरी खाओ, उसके बाद अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इफ्तार से पहले कुछ नहीं खाओ, खाना पीना जो हलाल चीज है वो भी तुम्हारे ऊपर हराम है। अब इफ्तार का टाइम हो गया, खा लो। अब हम अपने मन से अगर ये कहें कि हम ज्यादा ताखिर करके इफ्तार करेंगे हमें सवाब मिलेगा, तो ये चीज तक़वे में, इसलिए कि आपने अल्लाह की बात को ठुकराया, इनकार किया। इत्तिबा इसी चीज का नाम है। कुल इन कुंतुम फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह अपने नबी के जरिए पैगाम पहुंचा रहा है कि मेरे नबी आप अपनी उम्मतियों से कह दीजिए, यूं कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी से मोहब्बत करो।
नबी की इत्तिबा करो। नबी ने सहरी खाने का हुक्म दिया है, हमने सहरी खा लिया, फिर हुक्म हुआ कि दिन में कुछ ना खाओ, इफ्तार तक कुछ ना खाओ, और फिर कहा कि इफ्तार में जल्दी करो। तो हम और आप अगर जल्दी ना करके ताखिर करें तो ये हमारी इत्तिबा नहीं होगी। हम नबी की इत्तिबा नहीं किए, और जब नबी की इत्तिबा नहीं किए तो अल्लाह की भी इत्तिबा नहीं किए। इसी चीज का नाम तकवा है मेरे प्यारे साथियों। आइए तकवा की और एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। तकवा किस चीज को कहते हैं? सहाबाए किराम की मजलिस लगी हुई है, बड़े बड़े सहाबा उस मजलिस में बैठे हुए हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। कोई किसी से पूछ रहा है कि बताओ, तुम बताओ तकवा किसे कहते हैं, तुम बताओ तकवा किसे कहते हैं। कोई पूछ रहा है तुम बताओ। उबई बिन काब से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अरे उबई बिन काब तुम बताओ कि तकवा किसे कहते हैं। उबई बिन काब ने कहा, अरे उमर तुम जानते नहीं हो कि तकवा किसे कहते हैं। तकवा मान के चलिए, हमें कटिहार जाना है, हमें पटना जाना है, और रास्ता कांटेदार झाड़ी है, उस जगह को कैसे क्रॉस करके जाओगे? उस जगह में कैसे क्रॉस करके जाओगे? हजरत उमर ने कहा हम उस कांटा को हटा हटा कर चले जाएंगे। उबई बिन काब ने कहा, अरे उमर जितना ही बचने की कोशिश करो, जितना ही कांटा हटाओ, एक दो कांटा तुम्हारे पैर में चुभ ही जाएगा, तुम्हारे जिस्म में उलझ ही जाएगा, तुम्हारे जिस्म में उलझ ही जाएगा। हजरत उमर ने कहा अगर उलझ जाएगा, जिस्म में उलझ जाएगा, पैरों में चुभ जाएगा, हम उसका इलाज कर लेंगे। कटिहार आएंगे, सदर हॉस्पिटल आएंगे, वहां पर उसका इलाज कर लेंगे, मरहम लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे। उबई बिन काब ने कहा उमर इसी चीज का नाम तो तकवा है। दुनिया इसी तरह, जिस तरह गुनाहों का दुनिया, उसी तरह जिस तरह कांटेदार झाड़ी है, उसी तरह दुनिया गुनाहों का जाल है। कदम कदम पे गुनाहों के बाजार लगे हुए हैं, कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं, कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं। थोड़ी दूर आगे जाएंगे, कटिहार मार्केट आपको मिलेंगी, वहां पर लोग खैनी बेच रहे होंगे, वहां पर लोग सिगरेट नोशी कर रहे हैं। किसी साथी ने आपको दावत दी कि आओ खैनी खाओ, बीड़ी पियो, आओ सिगरेट नोश करो। आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसकी आदी नहीं। शैतान ने आपको बहलाना शुरू कर दिया, शैतान ने आपको धकेलना शुरू कर दिया। आप करीब है, दो चार कदम आगे भी बढ़ाए, लेकिन अचानक ख्याल आता है या अल्लाह आज हम शैतान के बहकामे में आकर ये बीड़ी पीने जा रहे हैं, ये सिगरेट पीने जा रहे हैं, या अल्लाह तू हमें इससे बचा ले। वो इंसान बचकर वापस हो जाता है, फिर कुछ देर आगे जाता है, कुछ दूरी और इख्तियार करते हैं। एक और बड़ा शहर मिला, वहां पर लोग जुआ खेल रहे हैं, वहां पर लोग जुआ खेल रहे हैं। फिर किसी ने आवाज दी कि आओ 10 रुपये लगाओ, 100 रुपये जीत के जाओ, तुम्हारी बीबियां खुश हो जाएगी, तुम्हारे बीबी को कपड़े ला कर दोगे, तुम्हारे बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर शैतान बहकाना शुरू कर दिया, आए फला जुआ खेल लो, अरे एक बार कम से कम खेल लो, 2 बार खेल लो, 3 बार खेल लो, तुम्हारा कुछ इनकम हो जाएगा, तुम्हारा कुछ पैसा आ जाएगा। वो इंसान अपना कदम और आगे से बढ़ाता है, कुछ कदम और बढ़ा देता है, फिर ख्याल आता है या अल्लाह मैं गुनाह कर रहा हूं, फिर वहां से हट जाता है और आगे की तरफ जाता है। फिर कुछ देर और आगे जाते हैं, कुछ दूरी और आगे इख्तियार करते हैं, वहां पर देख रहा है कि लोग शराब बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब की भट्टियां खुली हुई है, शराब के अड्डे खुले हुए हैं, इंग्लिश शराब बिक रही है, आओ शराब पी लो। शैतान ने उनको इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया, शराब का प्याला अपने हाथ में लिया और करीब तक अपने मुंह तक ले जाए और फिर मुंह से हलक तक। इतने में फिर ख्याल आया और वो इंसान शराब का प्याला छोड़कर भाग गया। शराब नहीं पी, हाथ लगाया जरूर लेकिन पिया नहीं। फिर कुछ कदम आगे और बढ़ाते हैं, जहां पर उनको लड़कियां दावत नजारा दे रही है, जहां पर उनको लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए नजर आ रही है, वहां पर लड़कियां उनको बुला रही है। ये इंसान
सिगरेट पीने से बच गया, ये इंसान शराब पीने से बच गया, ये इंसान जुआ खेलने से बच गया, ये इंसान शराब पीने से बच गया, लेकिन जाते जाते आखिर में कोई गुनाह कर ही लिया, उनसे कोई खता हो गई, उनसे कोई गलती सरजद हो गई। जितना भी बचने की कोशिश कीजिए, ये बशरी तकाजा है कि उससे कुछ ना कुछ गुनाह हो ही जाएगा। उबय बिन काब ने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह कांटेदार झाड़ियों को हटाकर चलते हो, एक दो कांटा पैर में चुभ जाता है, उसका इलाज कर लेते हो, उसी तरह दुनिया गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। अगर लाख बचने की कोशिश बावजूद बचने की कोशिश करो, बचने के बावजूद तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, उसका इलाज भी कुरान बतलाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अय्युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐ ईमान वालो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो तुम खालिस तौबा करो, करीब है कि अल्लाह तुम्हारे इन गुनाहों को माफ फरमा दे और तुम्हारी इन गुनाहों को माफ करके तुम्हारा एंट्री जन्नत में करा दे, जिनके नीचे नहरें बह रही होगी। रफा यदैहि इला समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ लहराओ, तन्हाई में रहो, खलवत में रहो, जलवत में रहो, अल्लाह को याद करो। आय अल्लाह, हमने बचने की बहुत कोशिश की कि हम गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन हमसे गुनाह हो गया है, आय अल्लाह तू हमें माफ फरमा, आय अल्लाह तू हमें माफ फरमा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, हमारी तौबा कबूल नहीं होती है, क्यों नहीं? तुलियत हाज़िही आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, हलालन तय्यिबा। यहां पर अल्लाह ताला लोगों से कह रहा है कि हमने जो तुम्हें रिज्क दिया है जमीन में, जो पाकीज़ा है, हलाल है, उन्हें खाओ। सिर्फ हलाल कह के अल्लाह ने नहीं छोड़ा, हलालन तय्यिबा, पाकीज़ा है, हलाल है, उन्हें खाओ। हलाल, हमारे सामने गाय हलाल है, बकरा हलाल है, दुम्बा हलाल है, लेकिन पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ। अगर वही बकरा, वही जानवर हराम कमाई से आपने लाकर किसी के लिए रख दिए या फिर चुरा कर लाए, वो बकरा तो हलाल होगा लेकिन वो पाकीज़ा नहीं होगा। पाकीज़ा का मतलब वो जानवर हलाल भी है, बकरा है, गाय है, दुम्बा है और पाकीज़ा है, खून पसीने की कमाई का वो बकरा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये कहा कि ऐ लोगों, हमारे रिज़्क़ में से पाकीज़ा और हलाल चीज़ों को खाओ। जब